Hello, Capricorn. Welcome to my reading, Cappies. This is a reading about your love life and relationships combined. Relationships could be with anyone, like any important person in your life, not necessarily sirf lovers, या spouse, या ऐसा कुछ, nothing like that. So, obviously, those two are included, but at the same time, it could be from your family circle, it could be from your friend circle, your colleagues, जिसके साथ आपका कुछ important अभी aspect चल रहा है, under the cosmic influence. So take it as it resonates, and उसके बाद हम लोग देखेंगे work and money, finances, that is career, job, business, whatever, everything. And then the third category will be health, Capricorn, your health sector. Okay, तो ये है the layout of the reading. बाकी का साइंस कंप्लीट हो गया बहुत पहले. So anyways, starting with your sign, Capricorn. सबसे पहले I'll be looking at the most powerful or influential energy currently affecting your life right now, in a bad way or good way, positive way or negative way, कुछ भी हो सकता है. Take it as it resonates, because this is a general reading, collective reading for all the Capris, all the Capricorns. So certain things obviously might resonate, certain things might not resonate. So take it as it resonates with your own life. Do not fit a different story unnecessarily. Certainly that is not recommended, Capris. I hope you understand that. Okay, universe, please show and at last we'll see the guidance. Please show the influential energy, the highest influential energy in Kepi's life currently. Please show the highest influential energy in Capricorn's life currently, universe. The highest influential energy in Capricorn's life currently. The highest influential energy in Capricorn's life currently. Let's see, Cappies. Words. You're about to complete something, Capricorn. Some unfinished business, some unfinished chapter will be completed by you. Got it? Some unfinished business will be completed by you. अब ये influential energy अब आगे देखेंगे रीडिंग में, जब आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा. Now obviously it can be that way, like for some Capricorn, this energy, influence, the highest influential energy is working in the love sector, relationship sector. For some Capricorns, it could be in the work and money sector. For some Capricorns, it could be in the health sector, That's how it can vary, because that is what is natural and obvious, because this is a general and collective reading for all the Capricorns under the sun. So certainly, सबका लाइफ स्टोरी एक जैसा नहीं होगा. Okay, deep down Capricorn, जो मैं देख रही हूँ, you're upset with something, Capricorn. Upset, disappointed, not happy from the bottom of your heart. You don't feel that happiness. You're feeling disconnected with any particular chapter of your life, or with any particular person in your life. You're feeling very demotivated, you're feeling very uninspired. In terms of, specifically, obviously, in terms of your emotions, in terms of your feelings. अब ये कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकता है आपका. ऑब्वियसली कैपिस टू कैपिस वैरी करेगा. लव सेक्टर में हो सकता है, वर्क सेक्टर में हो सकता है, हेल्थ सेक्टर में हो सकता है. यू आर फीलिंग वेरी डिमोटिवेटेड. देखते हैं आगे जाके कैटेगरिकली, जब रीडिंग देखेंगे तो पता चलेगा. You're unable to see the deep down, you're unable to see the opportunities. आपके सामने opportunity है,
आपके सामने सपोज प्यार है, आपके सामने पॉजिटिव वाइब्रेशन है, लेकिन फिर भी यू आर इग्नोरिंग दैट, यू आर नॉट वांटिंग टू लुक एट दैट पर्टिकुलर पिक्चर, दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, यू नो, आपको देखने का ही उस तरफ मन नहीं कर रहा है, लेकिन वही चीज मेरे ख्याल से कंप्लीट होगा, क्योंकि वहीं पर अनफिनिश्ड है। तो हो सकता है इसीलिए, इस वजह से शायद आप खुश नहीं है, डिसअपॉइंटेड हैं, और यही चैप्टर शायद खत्म होगा, बिकॉज इट्स इनकम्प्लीट एट द करंट स्टेज, और कमिंग डेज में वो फुलफिल होगा। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू ट्रूली डिजायर। रिफ्लेक्ट कीजिए अपने अंदर, शायद हो सकता है कुछ कैप्रिकॉर्न्स ऑलरेडी रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिए हैं, यू नो, अ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। रिफ्लेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली शिफ्ट आएगा ही, दैट इज व्हाट इज नेचुरल। सो रिफ्लेक्शन देख पा रही हूं मैं, या something will definitely end and something will begin. That's the overall energy, the highest influential energy. Okay, so अब categorically देखते हैं. First, I'll be starting with love and relationship sector. Love and relationship sector for Capricorn. Okay. देखते हैं. Universe, please show the card for Capricorn's love and relationship sector. What's the energy going on there? Please show the card, show the energy for Capricorn's love and relationship sector. What's the particular energy going on there in their love and relationship sector, universe? Please show the card, show the energy for Capricorn's love and relationship sector. What's going on there in their current life situations? Current life situations for Capricorn's love and relationship sector. Let's see, Capricorn. Let's see. All 10, 10, 10. Definitely कुछ खत्म होगा आपके लाइफ में. Well, I believe कुछ जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए पर्पस सर्व नहीं कर रहा था, ऐसा ही कुछ खत्म होगा आपके लाइफ में. It was not serving any good, you know, not for your sole purpose, so to say. 10 of Wands, 10 of Swords, all 10. Definitely कुछ कंप्लीट हो रहा है, और वर्ल्ड कार्ड तो है ही. और क्या कहे Capricorn, it's very obvious. You've reached a significant stage, you know. कोई भी चैप्टर हो, जैसा मैंने कहा, ऑब्वियसली कैपिस टू कैपिस ये वेरी करेगा. कुछ के लिए लव लाइफ, कुछ के लिए रिलेशनशिप, कुछ के लिए वर्क एंड मनी सेक्टर, कुछ के लिए हेल्थ सेक्टर. तो जो भी नेगेटिव एनर्जी अभी चल रहा था, जिसके वजह से आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी फ्रॉम विद इन, डीप डाउन, यू नो, योर सोल वाज नॉट हैप्पी. तो वही चीज खत्म होगा, एंड ऑफ अ साइकिल and the start, obviously, of a start of a new one. और ये प्रोसेस जब कंप्लीट होगा, when the cycle will complete, तब जाके आपको ये सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो अभी नहीं मिल रहा है. Because of that unfinished chapter, you are feeling dissatisfied. You are feeling unhappy. Once that, the moment that chapter is done, that chapter is over, you will be feeling very, very satisfied deep down, you know. From the bottom of your heart, you will feel that happiness.
good enough, because particular completion will bring fulfillment in your life, and you're going to start eventually. After that, you're going to start something new, a fresh chapter in your book called life, your life, KPs. Okay, तो वर्क एंड रिलेशनशिप सेक्टर, वहाँ पे भी मैं कुछ बर्डनसम एनर्जी देख रही हूँ. हेविली बर्डनसम, heavily burdened. बहुत स्ट्रेस्ड हैं आप, ऐसा लगता है. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी लव लाइफ में है कैप्रिकॉर्न, या फिर relationship sector, because this is a combined one, as I mentioned, love and relationship. Okay, पहले कार्ड्स शफल कर लेते हैं सब कैटेगरीज का. प्लीज शो द कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न्स वर्क एंड मनी सेक्टर. यूनिवर्स, प्लीज शो द कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न्स वर्क एंड मनी सेक्टर. वर्क एंड मनी सेक्टर, जॉब, बिजनेस, करियर, वर्क, फाइनेंसेस. Please show the card for Capricorn's health sector. Universe, what's the energy going on there? What's the energy going on there in Capricorn's health sector in current situation? What is the card? What is the energy of Capricorn's health sector in the current situation? Let's see, Capis. ओके कैप्रिकॉर्न, वेल आपके लाइफ में तो वाकई में अभी थोड़ा सभी सेक्टर में नेगेटिव जैसा एक वाइब्रेशन चल रहा है. नेवर माइंड, एंड दैट इज व्हाट इज गेटिंग कंप्लीटेड, गेटिंग फिनिश्ड. Be it love life, relationship, be it work and money, and be it हेल्थ. जो खराब फेज या फिर नेगेटिव फेज चल रहा था, वो फेज खत्म होने को है. एंड दैट्स द गुड न्यूज अबाउट इट, दैट्स द गुड पर्सपेक्टिव अबाउट इट. So love life में obviously, as I said, you are feeling very stressed out, you're feeling very burdensome, as if lot of responsibilities are there, hovering on your head. And obviously ये आपके लवर की तरफ से हो सकता है, because of your lover, because of your partner, because of your spouse, or because of any particular important relationship, which could be from your friend circle, which could be from your colleagues. कुछ भी हो सकता है. रिलेशनशिप्स ऑब्वियसली बहुत सारे होते हैं जिंदगी में. सो यही आपको ड्रेन कर रहा है. But never mind, you will come out of it. What you need to do, Capricorn, is you need to organize and reschedule your priorities. Maybe हो सकता है आप reschedule नहीं कर पा रहे, prioritize नहीं कर पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज को पहले रखे रिलेशनशिप में, कौन सी चीज को बाद में रखे. प्रायोरिटी हम लोग करते हैं ना, किस बेसिस पे प्रायोरिटाइज करना है, ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही. इसलिए आप सब कुछ करने जा रहे, ये भी कर रहे, वो भी कर रहे, तो इसीलिए स्ट्रेस्ड आउट हो जा रहे, इसीलिए बर्डनसम हो जा रहे. आप बर्डनसम आपको लग रहा है, मेंटली, मे बी फिजिकली. ऑब्वियसली मेंटल बर्डन रहा तो वो वाइब्रेशन शरीर पे भी पड़ेगा, नेचुरल है. सो यू नीड टू रिलीज स्ट्रेस, कैप्रिकॉर्न.
You have to put more efforts in your relationship, but you need to know कौन से चीज को prioritize करे relationship में, प्यार में, because this is I'm talking all about your love and relationship sector. Maybe you're overthinking also. इस वजह से शायद आप stressed out हो रहे हैं. इससे भी इंसान stressed out feel करता है. एक ही बात को बार बार सोचना. You have to put a check on it, Capricorn. Okay, moving on to your work and finances, work and money life, Capricorn. यहाँ पर भी energies अच्छे नहीं है. You need to heal, Capricorn. You need to heal, you need to rejuvenate, you need to recharge your batteries. See, यहाँ पे भी overthinking का energy है. Pressurized situation regarding your work, regarding your money or finances. यहाँ पे भी आप बहुत tensed है, stuck in issues as if. So what you need to do is, in order to get out of this situation, you need to heal. Because यहाँ पर भी situation stressed out है mentally and physically. Eventually, you need to rejuvenate, you need to recharge your batteries, Capricorn. Not good. Financial pressure है आपके ऊपर. You need to cut your expenses. Unstable भी हो सकता है कुछ Capricorn के लिए, you know, career wise कुछ stability डगमग कर रहा है, stability का ना होना. Unable to decide, maybe you're unable to decide which job to apply for, which career to choose, which path to choose in terms of career. Be it work, be it business. So this is a waiting period basically. Please wait, hold on. Okay? You need that pause. It's extremely important for your mental health and for your physical health, Capricorn. You need that pause. Because अभी आपका बैटरी पूरा ड्रेन्ड है. चाहे मेंटल बोलिए, इमोशनल बोलिए, फिजिकल बोलिए, एनर्जीज पूरा ड्रेन्ड है. तो प्लीज उसे चार्ज कीजिए. You need to recharge. That's what I said. तभी आपको स्ट्रेंथ मिलेगा. बगैर स्ट्रेंथ का कैसे आप आगे बढ़ेंगे? सोचने का भी क्षमता नहीं रहेगा. फिर कुछ काम करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है. इम्पल्सिव वे में मत जाइए. ऑब्वियसली इसका असर हमेशा अच्छा नहीं हो सकता है. इसका कोई गारंटी नहीं है कि अच्छा ही होगा. सो एनीवेज, यू नीड टू हील, यू नीड टू टेक प्रॉपर रेस्ट. Give some rest to your mind, give some rest to your body. I can understand you are under a lot of pressure of income proper या sufficient ना होना. इसका भी एक प्रेशर हो सकता है कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए. या फिर इनकम ज्यादा है लेकिन उससे भी ज्यादा एक्सपेंसेस हैं, तो इसका प्रेशर भी कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए इस तरीके का प्रेशर आ सकता है. करियर वाइज भी अनस्टेबल हो रहा है. हो सकता है आप इंटरव्यू दिए हैं किसी जॉब के लिए, लेकिन आपको अभी तक कुछ बोला नहीं जा रहा है, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है उस कंपनी से, यू नो. तो एज इफ आप हैंगिंग सिचुएशन में हैं ऐसा लग सकता है. इस वजह से हो सकता है ये पर्टिकुलर थॉट आपको स्ट्रेस का ट्रिगर कर रहा हो. सो इट कैन बी इन many ways rather. Okay, so you know how you need to heal. First, you should know that you need to heal. लोगों को यही पता नहीं चलता है कि हाँ अभी मुझे हील करना है. कुछ लोग को तो इतना भी समझ में नहीं आता है कि now my mind needs some rest, now my body needs some rest.
पहले इस बात को समझिए। मूविंग ऑन टू योर हेल्थ सेक्टर, ऑब्वियसली ये दो चैप्टर आपके लाइफ में देखने के बाद, ये दो सेक्टर देखने के बाद, अब तक तो आप मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया कि आपका फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। यहाँ पर भी नेगेटिव कार्ड आया है। ऑब्वियसली इंसान का मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इट्स ऑल साइकोसोमैटिक। अगर साइकोसोमैटिक पता ना हो इस वर्ड का तो प्लीज गूगल कर ले, डिटेल वे में आपको पता चल जाएगा। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर साइकी, योर माइंड। कोई भी डिजीज माइंड से ही आता है, दैट इज थॉट से आता है। जैसा आपका थॉट होगा वैसे आपका लाइफ होगा। सो हेल्थ के वजह से भी आपके मन के अंदर, दिमाग के अंदर स्पेसिफिकली बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे, बहुत 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 कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे। क्योंकि बाकी सब सेक्टर्स का ऑब्वियसली असर अच्छा नहीं है, तो उसका असर हेल्थ पे डेफिनेटली पड़ेगा। पेन है, फिजिकल पेन है बॉडी में, हो सकता है फिजिकल पेन आ रहा हो, मेंटली हो सकता है हेडेक हो जा रहा है, ऑब्वियसली ओवरथिंकिंग करते करते स्ट्रेस सॉरी। या जो मैं कह रही थी, तो हेल्थ में भी एनर्जीज पूरा इम्बैलेंस नजर आ रहा है, पूरा बैलेंस बिगड़ा हुआ है माइंड बॉडी स्पिरिट का। दिस अलाइनमेंट, एनर्जेटिक अलाइनमेंट इज completely disturbed. It's completely disturbed. So you need to balance those energies, Capricorn, regarding your health. Maybe it could be, I'm citing an example for you, it could be हो सकता है कुछ कैप्रिकॉर्न्स अगर ऐसे ट्रीटमेंट से कुछ चल रहे हैं फिजिकल हेल्थ के वजह से, मे बी बिकॉज वो ट्रीटमेंट क्योंकि पहले ही वर्ल्ड कार्ड आया था, तो मे बी बिकॉज वो ट्रीटमेंट आपके लिए, कभी कभी होता है हम लोग के लिए कुछ ट्रीटमेंट सही काम नहीं करता है, एक ट्रीटमेंट काम नहीं करता है, दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उनका दवाई असर कर रहा है अच्छी तरह से, पिछले डॉक्टर का दवाई medicines, it was not working for my health, kind of. Just an example I am citing. So हो सकता है आपके साथ भी ये हो, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखे। अगर पुराने तौर तरीके आपके हेल्थ के लिए काम नहीं कर रहे हो, could be in terms of food, फूड का भी हो सकता है, टाइमिंग आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहे, जो कि बहुत जरूरी है, प्रॉपर टाइमिंग मेंटेन करना फूड के लिए। एक टाइम मेंटेन करके चलिए, क्योंकि स्ट्रेस है ऑल द सेक्टर्स में, जैसा मैंने कहा हाईली स्ट्रेस्ड आउट है आप करियर सिचुएशन में और सभी सेक्टर्स में। तो उसके वजह से, ये स्ट्रेस के वजह से इंसान का खाने पीने का ढंग बदल जाता है, टाइमिंग बदल जाता है, उस वजह से हेल्थ बिगड़ जाता है। ऐसे ही तो मेंटल एक प्रेशर लोड रहता ही है, बर्डन रहता ही है, और उसके वजह से ठीक से फूड हैबिट्स मेंटेन ना करना, आपके साथ भी शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है जैसा मुझे नजर आ रहा है, with this card. So you can obviously visit a doctor or a nutritionist, जो आपको सही लगे Capricorn, to in terms of your health's betterment, improvement. So this was all about the three categories, the three sectors, that is
love and relationship sector, work and finance, and health sector. इन तीनों के बारे में मैंने डिटेल्ड बता दिया, गाइडेंस भी बता दिया कि क्या करना चाहिए. You need to take a stand for yourself. Avoid conflicts. ये conflicts की वजह हो सकता है ईगो बैटल्स हो रहा है आपके किसी के साथ, ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव चीज़ें हैं आपके लाइफ में चल रही हैं अभी फेज, जो कि बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है. डोंट वरी अबाउट इट. मैंने पहले ही कहा शुरू में, रीडिंग के शुरू में. तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे, ईगो बैटल्स हो रहे, इस वजह से वाकई में आपका हेल्थ बिगड़ रहा है. डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स कैप्रिकॉर्न. आप जो हैं वो हैं. खुद को बेटर करने का सोचिए, दूसरों से कंपैरिजन मत कीजिए. दैट वुड फेच यू एनी गुड. बहुत इनर एंग्विश है, इनर कॉन्फ्लिक्ट है, डिसएग्रीमेंट है, लोगों के साथ मेंटली वाइब्स मैच नहीं कर रहे, ऐसा कुछ चल रहा है. ठीक है, अभी हम लोग गाइडेंस देखेंगे. ओवरऑल यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है. हालांकि मैंने कैटेगरिकली आपको गाइडेंस बता दिया, लेकिन फिर भी एट लास्ट और एक डेक से गाइडेंस कार्ड देखेंगे. प्लीज शो द गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स. प्लीज शो द गाइडेंस कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न. What's the guidance for Capricorn? Learning and growth. Guidance and loyalty. I would suggest you, Capricorn, please seek some spiritual guidance, from a guru or a mentor, because वाकई में अभी टाइम खराब चल रहा है. नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं आप. हालांकि वो फेज खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर से मैं कह रही हूँ वर्ल्ड कार्ड आया है, पर लेकिन जब तक वो फेज खत्म ना हो, वो आप ही को खत्म करना होगा. कैसे करेंगे? बाय लर्निंग. सीखिए मेडिटेशन कैसे करना है, खुद के एनर्जीज को और बेटर कैसे करना है, मेंटल पीस कैसे लाना है, लर्निंग एंड ग्रोथ. और वाइज कैसे बनना है, क्योंकि अगर आप वाइज होंगे तो ईगो बैटल्स में कभी नहीं पड़ेंगे. नेवर. ये ईगो बैटल्स, ईगो क्लैशेस वाइज लोगों के लिए नहीं है कैप्रिकॉर्न. आई होप यू गेट माई पॉइंट. सो विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड लर्निंग. जो कुछ हो रहा है आपकी जिंदगी में, आपके साथ जो कुछ हो रहा है, उससे सीख लीजिए. लर्न द लेसन फ्रॉम इट एंड बी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर इट्स लर्निंग्स, फॉर द लर्निंग्स एज वेल एज द ब्लेसिंग्स. Today, take a moment to reflect on past experiences and learn from them. Every challenge and every failure is a stepping stone to wisdom. ये फेलियर ही सिखाता है हम लोगों को. ये चैलेंजेस बहुत कुछ सिखा के जाते हैं जिंदगी में, चाहे कुछ भी एरिया हो, कुछ भी फील्ड हो. कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग. यही आपका गाइडेंस है. और कहीं पे अगर जिंदगी में किसी के साथ कोई भी रिश्ते में अगर लॉयल्टी का इशू है, क्योंकि डीप डाउन ये कार्ड आया है लॉयल्टी वाला. सो अगर कोई इशू है अनरिजॉल्व्ड रिलेटेड टू योर ट्रस्ट इशू, रिलेटेड टू सम लॉयल्टी इशू, तो उसे भी सॉल्व कीजिए. लर्न टू ट्रस्ट अदर्स. हो सकता है आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए शायद ईगो बैटल्स में इन्वॉल्व हो जा रहे. Learn to trust people, and most importantly, trust yourself first. ऐसा भी लोगों के साथ होता है, लोग खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाते, खुद के साथ ट्रस्ट इशू हो जाता है. लोग तो खैर बाद में आते हैं, पहले तो खुद मैं, isn't it? उसके बाद दुनिया. The wolf represents
wisdom and loyalty. यहाँ पर भी wisdom की बात आई है. You need to be very wise, Capricorn. It leads with intelligence and stays loyal to its pack. Today, trust your inner wisdom and intuition. Loyalty will bring you strength and stability, helping you face challenges with confidence. You need to be wise, Capricorn. You need to grow. You need to mature. Capricorns are matured, but हो सकता है obviously astrological birth chart के basis पे बहुत कुछ vary करता है ना. It's a generic statement, general statement, generalized way में that Capricorns are very mature zodiac sign. Why? Because this is ruled by Saturn. Capricorns are ruled by Saturn, and Saturn is a wise planet, along with Jupiter also. बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो यही आपको स्ट्रेंथ गैदर करना है, तभी जाके सैटर्न का पूरा एनर्जीज आप में आएगा. अभी आप लर्निंग प्रोसेस में है, सही, इसीलिए ये कार्ड आया है आपके लिए, लर्निंग एंड ग्रोथ. You need to learn all the Saturnine abilities to be wise enough. तभी आप ये सब जितने भी मुश्किलें हैं इसे फेस कर पाएंगे, जितने भी चैलेंजेस अभी फेस कर रहे, क्योंकि हर एक फील्ड में आपका मैं चैलेंज देख रही हूँ, नेगेटिव इश्यूज देख रही हूँ कैप्रिकॉर्न. सो एनीवेज, रीडिंग काफी लंबा हो गया. Thank you so much. I wish you all the very best, Cappies. See you in my next reading. Till then, take care. Bye-bye. See you soon.